Complex numbers. A complex number is basically standard Cartesian form is this a plus iota b, where real part of the complex number is a and imaginary part of the complex number is b. And the standard Cartesian form is this. We have seen this in the previous class, right? अथर तुम लास्ट क्लास में नहीं थे? यस सर, वो एक्चुअली इट वाज रेनिंग वेरी हेवीली, सो नेटवर्क इशू था, so बहुत ज़्यादा तो ज्वाइन नहीं कर पाया था. ओके. Suppose in a complex number, if say b is equal to 0, this is a complex number whose imaginary part is 0. Then, हाँ, नहीं वो complex number कहलाएगा. So this would be the complex number would be purely real number. ठीक है? Then we say सब लोग कैमरा ऑन करो अपना. Purely real complex number. If imaginary part of a complex number is 0, it would be purely real complex number. जैसे कि suppose z is equal to 2, z is equal to 3, all these are complex numbers. अक्षिता, नव्या, सिया, सब लोग कैमरा ऑन करो. So a complex number whose imaginary part is 0 is called purely real complex number. लिख लेना. A complex number whose imaginary part is 0, a complex number whose imaginary part is 0 is called purely real complex number. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ दैट एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना? आगे लिखो. दैट मीन्स every every real number is a complex number. Every real number is a complex number with imaginary part 0. Also, set of real numbers is subset of set of complex numbers. अगर मैं set of complex number को C से represent करूं, तो I can say that set of real numbers is subset of set of complex numbers. Right? So that means every real number is a complex number. Now, what if A is 0? A 0 का मतलब हुआ real part of the complex number is 0. That would mean that the complex number is iota b, purely imaginary. So if a complex number is purely imaginary, its real part would be 0. If a complex number is purely imaginary, its real part would be 0. For example, z is equal to minus 3 iota, 4 iota, 5 by 2 iota. All these are purely imaginary complex number. So for a complex number to be purely imaginary, real part 0 होगा. For a complex number to be purely real, उसका imaginary part 0 होगा, और purely imaginary का real part 0 होगा. ठीक है?
Next is modulus of a complex number. Modulus of a complex number. Suppose there's a complex number which is a plus iota b. Then modulus is represented like this. You'll write it this way. Mod of a plus iota b. Mod z would be mod of a plus iota b. And the formula is modulus of a complex number is always a square plus b square. That is, mod z is always a positive number, which is real part of z whole squared, because a is real part and b is imaginary part. So modulus of a complex number will be like this. Real part squared plus imaginary part squared. हाँ थी तुम हमेशा ऑनलाइन क्लास करोगे अब? हम्म। सो रही है शायद ये। चलो तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं है, टाइप कर दो, ठीक है, मैसेज टाइप करो। Like if you have a complex number -3 plus 4 iota, what will be its modulus? Its modulus would be mod of -3 plus 4 iota. The real part is -3. Imaginary part is 4. So it would be 9 plus 16, that is 5. 25 the root. So mod of -3 plus 4 iota would be 5. But जब भी you want to find out modulus of a complex number, you have to ensure that the complex number is in standard Cartesian form. ये है standard Cartesian form of a complex number. Standard Cartesian form का मतलब होता है iota has to be in the numerator only. Suppose you want to find out mod of -12 minus 5 iota करना. Find mod of 3 plus iota over 1 plus iota. रफ कागज देना एक, रफ शीट दे दो, लो ही दो। फर्स्ट का क्या आंसर आ रहा है? फर्स्ट का आंसर 13 होगा, ठीक है। दैट मीन्स किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड हमेशा पॉजिटिव आएगा। -12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर द रूट, राइट। सेकंड वाले में फर्स्ट यू कन्वर्ट इनटू कार्टेशियन स्टैंडर्ड फॉर्म, उसको रैशनलाइज करो,
and after that you will be finding the तो कौन सा क्वेश्चन बोलना था आपको? बोर्ड पे लिखा हुआ है, दोनों का मॉडुलस निकालना है। ठीक है। सर सेकंड का रूट 5 आ रहा है। रूट कितना, 5 आ रहा है? रूट 5। रूट 5, सबका अलग अलग आंसर आ रहा है। Mod of this would be minus 12 square plus minus 5 square, that is 144 plus 25 169 13 आ गया। इसको तुमने रैशनलाइज किया होगा, 1 minus iota multiply divide, so this would be 3 minus 3 iota plus iota minus iota square divided by 1 plus 1 this would be 4 minus 2 iota divided by 2, z would be 2 minus iota. Now you find its modulus. So mod of z, रूट 5 हो जाएगा। yeah, 4 plus 1, that is root 5. ठीक है? Now there are certain results regarding modulus, we'll derive them as it is। तुम्हारे स्कूल एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकते हैं। Suppose z1 is a plus iota b, z2 is c plus iota d, they're two different complex numbers। First part is prove that mod of z1 into z2 equal to mod z1 into mod z2, right? Start from LHS, z1 z2 को मल्टीप्लाई करो, स्टैंडर्ड कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करो और फिर उसका मॉड लो। राइट हैंड साइड को टच नहीं करना है तुम्हें बिल्कुल भी, बिना राइट हैंड साइड को छेड़े छेड़े तुम्हें एलएचएस से आरएचएस चाहिए। ठीक है? आर आरएचएस क्या है हमारा? आरएचएस है मॉड z1 विच इज दिस एंड मॉड z2 विच इज दिस। मतलब ये हुआ कि तुम्हें एलएचएस से ही आरएचएस लाना है, आरएचएस को सिंप्लीफाई नहीं करना है। ठीक है? गॉट इट? नाउ यू टेक योर ओन टाइम एंड आंसर दिस। आधे कैमरा ऑन करो। सर 5 मिनट्स में करते हैं। ठीक है। अच्छा तुम गाड़ी में हो अभी? नहीं, मैं अभी स्कूल से आई हूँ, वाटर लॉगिंग हो गई थी। अच्छा, ओहो। हम्म। हाँ ठीक है। अब इसका रियल पार्ट अलग करो। सबसे पहले लेफ्ट साइड को सिंप्लीफाई करके उसको स्टैंडर्ड कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बिगिन फ्रॉम एलएचएस, z1 z2 को रिप्लेस करो, मल्टीप्लाई करो, रियल पार्ट सेपरेट करो, इमेजिनरी सेपरेट करो। कर लो। क्या हुआ अक्षता, नींद आ रही है?
सिंप्लीफाई करो, फैक्टराइज करो, उसके बाद उसको इट टेक टाइम। मॉडुलस में इमेजिन, हाँ, उसके बाद उसका मॉडुलस निकालो। मॉडुलस का फॉर्मूला भी किया तो है तुम लोगों ने। तो दिस नहीं वो कितना करना है सिंप्लीफाई क्या हुआ? स्क्वायर रूट करने से पहले? राइट साइड आना चाहिए, राइट साइड है 10 × 10। तो पहले तुमने मल्टीप्लाई किया, AC माइनस BD प्लस आयोटा इंटू BC प्लस AD आ रहा होगा, आ रहा है ये? वी हैव बेसिकली चेंज्ड, मल्टीप्लीकेशन किया, उसके बाद आयोटा वाला पार्ट अलग कर दिया, रियल पार्ट अलग कर दिया। अब सिंस यू नो दैट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड कैसे निकलता है, इफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज x प्लस आयोटा y, देन मॉडुलस इज ऑलवेज रियल पार्ट स्क्वायर्ड प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, बिकॉज Z1 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, Z2 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, द प्रोडक्ट, द डिविजन, सब कुछ ही कॉम्प्लेक्स होगा। तो अब इसका रियल पार्ट ये है, इमेजिनरी है, तो इसका मॉड कैसे आएगा? अंडर रूट ऑफ AC माइनस BD का स्क्वायर प्लस BC प्लस AD का होल स्क्वायर। इसको सर ओपन आपने करो। AC माइनस BD क्यों किया है? AC माइनस BD आ रहा है मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई किया तुमने? तो कोई लाइक प्लस ही तो है दोनों साइड पे, तो आईटा माइनस। स्क्वायर कितना होता है, लास्ट क्लास में थी तुम? ओह अच्छा, सॉरी। आईटा स्क्वायर इज -1। अब इसको ओपन करो यूजिंग द आइडेंटिटी A+B का होल स्क्वायर, A-B का होल स्क्वायर। इसमें टाइम लगेगा, आराम से करो, दस नो हरी। A² C² प्लस B² D² माइनस 2ABCD, दिस वुड बी B² C² A² D² प्लस 2ABCD। कुछ कट रहा है? वो कैंसिल कर दो। क्या कॉमन आ रहा है? इसमें से और इसमें से A² कॉमन ले लो, इसमें से और इसमें से B² कॉमन ले लो। तो जो मैंने अंडरलाइन किया उससे A² कॉमन लो, A² कॉमन लेने पा रहा है C² प्लस D²। जो क्रॉस किया उससे B² कॉमन लो, C² प्लस D²। तो नाउ दिस इज A² प्लस B² अंडर रूट C² प्लस D² विच इज रूट ऑफ A² प्लस B² रूट ऑफ C² प्लस D², right? So which is nothing but mod Z1 mod Z2। जबकि लेफ्ट साइड में क्या है, mod Z1 इंटू Z2। ये एक पहला रिजल्ट है तुमने अभी डेराइव किया है, इसको डेरिवेशन भी आ सकता है स्कूल एग्जाम में, एंट्रेंस में हम डायरेक्टली यूज करेंगे इसको। तो इसका मतलब ये हुआ कि इफ वी आर फाइंडिंग मॉडुलस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, there's no point multiplying them, then finding modulus. Straight away you can find the individual modulus and multiply। अगर हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मान लो, तुम्हें दे रखा है z इज इक्वल टू 1 + i 3 - 4 i, एंड द क्वेश्चन इज फाइंड मॉड z। तो ये नहीं कि पहले इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वी कैन यूज दिस प्रॉपर्टी मॉड ऑफ 1 + i इंटू मॉड ऑफ 4 i। तो 1 + i वुड बी 1 + 1 द रूट, 3 -4 would be 9 + 16, so answer would be 5√2। So modulus of product of two complex numbers is equal to the product of their modulus, and this result हम जनरलाइज भी कर सकते हैं। मतलब अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उनके प्रोडक्ट का मॉडुलस उनके मॉडुलस के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। अगर तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 Z2 Z3, तब भी ये होल्ड करेगा, mod Z1 mod Z2 mod Z3। और अगर there are n complex numbers like Z1 into Z2 till Zn, it would be mod Z1 mod Z2 till mod Zn। लिख लो।
right? This is the first result. Second may we have on the left side z1 by z2. Z is a complex number, z2 is also a complex number. The ratio will also be a complex number. So mod of z1 by z2 is equal to mod of z1 by mod of z2. अगेन एलएचएस से आरएचएस चाहिए मेरे को, ठीक है? आरएचएस को हम बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे. फ्रॉम द एलएचएस गेट टू द आरएचएस. So first you write Z1 and Z2, replace them with A plus iota B, C plus iota D, rationalize and write the complex number in the standard Cartesian form. That means no iota in the denominator. ठीक है? पहले हमें आयोटा को हटाना है, तो उसको रैशनलाइज कर लो मॉड के अंदर ही. और जब तुम रैशनलाइज कर लोगे उसके बाद फिर उसका मॉडुलस निकालना है. Start from LHS, which is mod of Z1 by Z2. Z1 is A plus iota B, Z2 is C plus iota D. अभी ये स्टैंडर्ड कार्टेशियन फॉर्म में नहीं है, तो वी नीड टू गेट rid of iota from denominator by rationalizing this. डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करो, C माइनस आइटा डी, C माइनस आइटा डी. और फिर वही कहानी जो हमने पहले किया था, सेपरेट द रियल पार्ट, सेपरेट द इमेजिनरी पार्ट. बिना गलती किए, बिकॉज प्लस माइनस की गलती नहीं होनी चाहिए कहीं भी. नेहा तुम भी कैमरा ऑन कर लो. सॉरी नव्या. सर मैं एक बार अभी ट्रैवल कर रही हूँ थोड़ी देर के लिए, अभी ट्रैवल ही कर रही हो तुम? क्या कर रही हूँ, हाँ इसलिए मैंने ज्वाइन किया था online अच्छा आज। ठीक है. अनन्या क्या हुआ, तुम बहुत लेट हुआ आज? हाँ सर सॉरी, मैं कहीं थी, मैं अभी अभी घर पहुंची हूँ। ओहो. और फिजिक्स का एग्जाम हो गया? हाँ सर। हाउ वाज इट? सर नॉट दैट गुड, क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट थे। अच्छा, शेयर कर देना मेरे को, ग्रुप में डाल देना हाँ क्वेश्चन. ओके। तो रैशनलाइज करो. ऊपर क्या आ रहा है? देखो, रियल को रियल से मल्टीप्लाई करो, इमेजिनरी को इमेजिनरी से करो, तो उससे मिलता है हमें रियल पार्ट. ऊपर वाला कैसे आ जाएगा प्रूफ, जब तक तुम अभी देख करते हैं. देखो, इमेजिनरी पार्ट क्या आ रहा है? रियल विद इमेजिनरी को रियल से मल्टीप्लाई करो बी सी, और इमेजिनरी को रियल से करो ए डी. यही आ रहा है न्यूमरेटर में. चेक दिस आउट, इज इट द सेम? ए सी प्लस बी डी यस सर, है ना? तो अब यही था। हाँ, लेट्स सेपरेट द रियल पार्ट. रियल पार्ट पूरा अलग कर देते हैं. सो द रियल पार्ट इज ए सी प्लस बी डी डिवाइड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. रियल पार्ट में आयोटा नहीं आना मांगता है. एंड इमेजिनरी पार्ट में बी सी माइनस ए डी ओवर
सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल, ये आ गया। तो हमने इसको रियल पार्ट अलग कर दिया, इमेजिनरी अलग कर दिया। अब मॉडुलस का फॉर्मूला क्या है? मॉडुलस का फॉर्मूला हमारे पास ये है कि अगर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई है, तो मॉड z वुड बी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। दैट मीन्स दिस वुड बी रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर्ड AC प्लस BD बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर का होल स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट कितना है? रिमेंबर दैट इन द इमेजिनरी पार्ट वी नेवर इंक्लूड आयोटा। आयोटा को इंक्लूड मत कर लेना, फाउल हो जाएगा। ये आ गया। आफ्टर दैट यू टेक LCM and there's no point simplifying the denominator. उसको ओपन मत करना, न्यूमरेटर ओपन कर लो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। ठीक है, सिर्फ न्यूमरेटर ओपन करो, जस्ट लाइक वी डिड इन द प्रीवियस पार्ट। तो आ गया आंसर। गुड। तो ये वैसे हम इसके अंदर क्यों नहीं चेंज कर रहे हैं RHS को? RHS को अगर कर लेंगे बहुत सिंपल हो जाएगा हमारे लिए। अगर तुम RHS को भी करो, LHS को भी करो, इट्स क्वाइट सिंपल फॉर अस। लेट्स डू इट बाय फिर टफ वे। तो जान के क्यों मुश्किल बनाना है? अरे हमें तो वैसे टारगेट करना है, एग्जाम में टीचर का मार्क्स भी काट सकते हैं, बिकॉज दे वांट कि तुम एक स्टार्ट से स्टार्ट करके दूसरी साइड लाओ। तो पर ट्रिग्नो में तो हमें अलाउड होता है। नहीं नहीं, वो वैसे टू सम एक्सटेंट गलत होता है, बट टीचर माफ कर देते हैं तुम्हें। अब न्यूमरेटर तुम ओपन करोगे एंड फिर फैक्टराइज करोगे एज बिफोर, जो मैंने पहले भी किया था। ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 2ABCD प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस, एंट्रेंस में तुम सीधे सीधे सारे रिजल्ट याद कर रहे हैं, हमें इनकी कोई जरूरत ही नहीं है। दिस पार्ट आई एम डूइंग फॉर योर नॉर्मल होम एग्जाम। ये कट जाएगा और वही कहानी जो हमने पहले की थी, फ्रॉम ए स्क्वायर सी स्क्वायर टेक ए स्क्वायर डी स्क्वायर टेक कॉमन, and from b square d square and b square c square take common, and simplify करने के बाद तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो न्यूमरेटर फैक्टराइज करके आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। डिनोमिनेटर आ रहा है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना? होल स्क्वायर कट जाएगा इसका। लो कर लो बात, आ गया आंसर। कॉम्प्लेक्स नंबर कितना सिंपल है, लेकिन एंट्रेंस के लिए हम कुछ एक्स्ट्रा भी करेंगे। सम पार्ट आई डू दिस ईयर, सम पार्ट आई डू नेक्स्ट ईयर, नॉट एंटायरली। बहुत एक्स्ट्रा भी आता है एंट्रेंस में, जो कि एनसीईआरटी में नहीं है। सो वी हैव प्रूव द सेकेंड प्रॉपर्टी, मॉड ऑफ z1 बाय z2 इज मॉड ऑफ z1 बाय मॉड ऑफ z2। इसको यूज कैसे करना है इस रिजल्ट को? मान लो क्वेश्चन इज दैट फाइंड मॉड ऑफ 3 + 4 iota into 1 - 2 iota divided by -5 - 12 iota. So if somebody does not know these properties, he'll multiply, rationalize, simplify, then we find a modulus. No. न्यूमरेटर में दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और फिर डिवाइड भी हो रहा है, तो वी कैन फाइंड देयर इंडिविजुअल मॉडुलस यूजिंग प्रॉपर्टी 1, एंड द सेकंड पार्ट में प्रॉपर्टी 2 यूज कर ली हमने। वी हैव यूज बोथ द प्रॉपर्टीज। ये हो जाएगा 9 + 16, ये हो जाएगा 1 + 4, ये हो जाएगा 25 + 144। दिस इज 5√5/13। ठीक है आद्या? तो वी हैव derived the second property as well. Third, if z is x plus iota y, prove that mod of z square is equal to mod z whole square. Answer this.
if z is x plus iota y, prove that mod of z square is mod z whole square. तुम्हें मालूम है अगर z x प्लस आइटा y है तो mod z कितना होता है? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. दैट मीन्स यू नो ऑलरेडी नो RHS. RHS है mod z का स्क्वायर, मतलब हमारा आंसर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. यू स्टार्ट फ्रॉम LHS, गेट RHS. मैथ्स के मार्क्स मिल गए तनिष्का स्कूल में? Mahati, what are your marks in school maths exam? तुम टाइप करो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है. यू कैन राइट योर आंसर. कितने आए? ओके. LHS से स्टार्ट करो. हाँ तो रियल पार्ट ये हो गया, इमेजिनरी ये हो गया, इसको सॉल्व करो. हाँ करो, सही तो कर रही हो. कई बार होता है एग्जाम में भी ऐसा, स्टार्ट विद क्वेश्चन, पूरा सॉल्व कर दिया, लगता है गलत है, उसको काट दिया, फिर बाद में पता है तो वो सही किया था हमने. तो काटने से पहले सोचना चाहिए. तो मेरा अंडर रूट में x⁴ प्लस y⁴ प्लस 4y² माइनस 2x² y² हाँ सही है, सिंप्लीफाई करो ना उसको. और आ गया तुम्हारा पर आंसर. 2y² को कॉमन लेना. नहीं नहीं, कॉमन कुछ नहीं आ रहा है. कॉमन कुछ नहीं आ रहा है. LHS से तुम्हारा मॉड ऑफ z स्क्वायर, दैट इज x प्लस आइटा y होल स्क्वायर. तो उसको ओपन किया, a प्लस बी होल स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा xy. यही है मॉड. अब अंडर रूट अभी नहीं आएगा. एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा xy, राइट? ये आ रहा होगा. तो xy नहीं आ रहा. सो द अच्छा रियल, सो व्हाट इज द रियल पार्ट? रियल पार्ट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड 2 आयोटा xy इज द इमेजिनरी पार्ट. तो इसका मॉड कैसे लोगे? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2xy का होल स्क्वायर, है ना? फिर मॉड z1 z2 लेफ्ट हैंड साइड, इसको ओपन करो. एक्स टू द पावर 4 वाई टू द पावर 4 माइनस 2x² वाई स्क्वायर, और ये है 4x² वाई स्क्वायर. ये कट जाएंगे. So now you have x to the power 4 y to the power 4 plus 2x² y square. This is nothing but x square plus y square का whole square. Which is RHS. अगर तुम चाहो तो ये आइडेंटिटी भी याद कर सकते हो. ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, या ये कर लो, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज ऑलवेज
ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। ये यूज हो रहा है, डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ए प्लस बी होल स्क्वायर इज ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। इस पे किसी को डाउट है? अनन्या, हो गया ये? Yes. इसका सेकंड बी पार्ट करो जरा। ए प्लस बी होल क्यूब इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए बी इंटू ए प्लस बी। ऐसे याद करो उसको, इजी रहता है। और अगर यहाँ माइनस है तो फर्स्ट टर्म को छोड़ के हर प्लस की जगह माइनस लिख दो। हो रहा है? LHS में you can apply a plus b whole cube x plus iota y whole cube, open it, x cube iota cube y cube 3 iota x y bracket x plus iota y. Iota cube is minus iota. This would be 3x square y iota. This would be 3x y square iota square. Iota square is -1. तो रियल पार्ट अलग कर दो, इमेजिनरी अलग कर दो। तो रियल पार्ट क्या हो गया? एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया? -y क्यूब प्लस
3x² y। अब इसका मॉडुलस ले लो। मॉडुलस लो तो x³ माइनस 3x² का होल स्क्वायर माइनस y³ प्लस 3x² का होल स्क्वायर। अब इसको पेशेंटली ओपन करो आराम से, a माइनस बी की आइडेंटिटी लगा के। तो -y³ आएगा। माइनस, वहाँ ऊपर -y³ है। हाँ तो आइटा क्यूब कितना होता है? आइटा स्क्वायर -1 होता है। आइटा क्यूब इज माइनस आयोटा। Now use a minus b का whole square a 2 times. So x to the power 6 plus 9x square y4 minus 6x4 y square plus y6 plus 9x4 y square minus 6x square y4। देखो ये आ रहा है। अब इसमें कुछ टर्म्स आइडेंटिकल हैं, दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस। देखो जरा, तो माइनस हो जाएगा। So x6 plus y6 plus 3x² y4 plus 3x4 y square. And this is nothing but x² plus y square का होल क्यूब। देखो, x² होल क्यूब, y² होल क्यूब, 3x² y² कॉमन, ब्रैकेट में x² प्लस y²। तो ये आइडेंटिटी बन गई तुम्हारी x² प्लस y² होल क्यूब की। एंड रूट क्या होता है? रूट होता है टू द पावर हाफ। रूट का मतलब टू द पावर हाफ होता है। तो So, वहाँ लेफ्ट साइड पे बोर्ड के वहाँ -3x² नहीं आना चाहिए। कहाँ पे? x² y²। इधर? सबसे नीचे वाले स्टेप में लेफ्ट साइड। ये यस। माइनस क्यों होगा? सो -3x² y² कह रही हूँ। वाई स्क्वायर नहीं स्क्वायर का आएगा। वो तो कर दिया ना, वो तो यहाँ लिख, नहीं, स्क्वायर अंदर नहीं आएगा पहले भी। ये आ गया ना, ये जो यहाँ लिख दिया मैंने इसको। वो तो आइटा स्क्वायर को लिख दिया ना मैंने माइनस करके। तो दिस इज योर RHS। पावर को ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो ये मॉड जेड हो गया, राइट साइड आ गया।
देख लो एक बार, उसमें कोई डाउट है तो पूछो। क्या? हम्म। अभी एक ही बात आती। ए माइनस बी का होल स्क्वायर और बी माइनस ए का होल स्क्वायर सेम होता है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, नहीं नहीं, ए माइनस बी होल स्क्वायर बी माइनस होल स्क्वायर सेम थिंग। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, ये तुमने कर तो लिया, बट इसको हम बिना, जो हमने एक रिजल्ट डिराइव किया था ना थोड़ी देर पहले, उसको यूज करके भी कर सकते थे। क्या था वो रिजल्ट? जैसे कि हमने ये देखा था कि मॉड z1 इंटू z2 इक्वल टू मॉड z1 इंटू मॉड z2 होता है। ठीक है, ये रिजल्ट भी ऑलरेडी नो। ना इस रिजल्ट में अगर हम z1 को और z2 को z लेट कर लें, ठीक है, फिर क्या होगा जरा देखो। ये आएगा z इंटू जेड का मॉड, ये आएगा मॉड z इंटू मॉड z, दैट इज मॉड ऑफ z स्क्वायर इज मॉड z का होल स्क्वायर। सिमिलरली हम इस तीन के लिए भी कर सकते थे, बट आई वॉन्टेड दैट यू डू इट लाइक दिस बिकॉज तुम्हें फॉर्मूला भी तो याद होने चाहिए ना। अगर हमें सपोज z1 इंटू z2 इंटू z3 होल मॉड पता है कि मॉड z1 मॉड z2 मॉड z3 होता है, तो लेट z1 इक्वल टू z2 इक्वल टू z3, तो लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, z का मॉड, राइट साइड आएगा मॉड z मॉड z मॉड z, दैट इज मॉड ऑफ z क्यूब इज इक्वल टू मॉड z होल क्यूब। इन जनरल वी कैन से दैट mod of z to the power n always equal to mod z to the power n। ये याद कर लेना, mod of z to the power n is mod z, ये भी होता है। अभी जो किया एक बार देखो उसको, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, conjugate of complex number is obtained by changing the sign of imaginary part। अगर इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बना दो, पॉजिटिव तो नेगेटिव बना दो, एंड इट्स रिप्रेजेंटेड बाय जेड बार। तो जेड बार इज conjugate of z।
and z bar or x plus iota y whole bar will be x minus iota y. So if z is x plus iota y, its conjugate would be x minus iota y. And you represent by z bar. लिख लो इतना एक बार. सर हम्म. तो ये सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर का ही होता है कॉन्जुगेट या नॉर्मल का भी होता है? Conjugate normal जैसे कि if a, if a number is like this 2 plus रूट थ्री, ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, आइटा नहीं है, पर इसका कॉन्जुगेट होगा 2 माइनस रूट थ्री. तो रियल नंबर्स का भी कॉन्जुगेट हो सकता है. तो मतलब जो उनका हाँ. इरेशनल पार्ट है उसका. या इसका चेंज द साइन, नेगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव. तो इफ यू हैव सपोज अ नंबर विच इज 3 माइनस 4 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 3 प्लस 4 आयोटा. इफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज 5 आयोटा माइनस 3, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? हाँ, मुझे मालूम है तुम गलतियां करोगे. 5 आयोटा प्लस 3 नहीं, इमेजिनरी पार्ट का साइन करना है, इसलिए मैंने उल्टा लिखा था जानबूझ के. तो you have to change the sign of imaginary part. सर तो बेसिकली जैसे रैशनलाइज करते हैं वैसे ही है ना ये? हाँ. जैसे हम रैशनलाइज करते हैं ये वैसे ही है ना? यस यस, जब हम रैशनलाइज करते थे बेसिकली हम कॉन्जुगेट से ही मल्टीप्लाई कर रहे थे, है ना. तो अब एक काम करते हैं, अगर z ये है, देन फाइंड फर्स्ट पार्ट z प्लस z बार, सेकेंड पार्ट z माइनस z बार, थर्ड पार्ट z इंटू z बार. करो. हो गया. तो z एक्स प्लस आइटा वाई है, z बार एक्स माइनस आइटा वाई है, देयरफॉर z प्लस z बार वुड बी 2x, है ना. बट व्हाट इज x? x इज रियल पार्ट ऑफ z, है ना. x इज रियल पार्ट ऑफ z. तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका कॉन्जुगेट ऐड करें तो हमें क्या मिलता है? 2 टाइम्स द रियल पार्ट. और अगर हमें किसी कॉम्प्लेक्स का रियल पार्ट निकालना है तो हमें क्या करना होगा? उस कॉम्प्लेक्स में चुपके से उसका कॉन्जुगेट ऐड कर दो और उसको 2 से डिवाइड कर दो. किसी कॉम्प्लेक्स में उसका कॉन्जुगेट ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो तो रियल पार्ट आ जाएगा. ठीक है. सिमिलरली z माइनस z बार कितना आ रहा है? 2 आयोटा y. दैट इज z माइनस z बार इज 2 आयोटा टाइम्स imaginary part of z. दैट इज इमेजिनरी पार्ट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर में से उसका कॉन्जुगेट माइनस करो. यस.
एंड देन z इंटू जेड बार क्या आ रहा है, ये हमको ये हमने कॉन्जुगेट वाली प्रोसेस में बहुत बार यूज किया है। ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो z इंटू जेड बार इज ऑलवेज मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, ये मॉड जेड स्क्वायर ही तो है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। जब भी तुम किसी कॉम्प्लेक्स को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हो तो सीधा सीधा आंसर लिख सकते हो रियल पार्ट स्क्वायर्ड प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, हमेशा पॉजिटिव आंसर आएगा। z इंटू जेड बार इज ऑलवेज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब रैशनलाइज करते थे ना, जैसे मान लो डिनोमिनेटर में 3 - 5 आयोटा है, तो विल मल्टीप्लाई विथ 3 + 5 आयोटा डिवाइड बाय 3 + 5 आयोटा। सो दिस वन सिंगल स्टेप डिनोमिनेटर में यू कैन राइट 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। there's no point writing -5 iota square फिर iota square को -1, पॉजिटिव आएगा हमेशा नीचे। now more results on conjugate. If z1 is a plus iota b, z2 is c plus iota d, prove first part z1 into z2 whole conjugate is equal to z1 conjugate into z2 conjugate। करना वेरीफाई, LHS से RHS लाना है, RHS को टच नहीं करना है। क्या हुआ अक्षता? कुछ नहीं सर, देख रही थी। LHS से स्टार्ट करो, पहले मल्टीप्लाई करो जैसे किया था, फिर इसका कॉन्जुगेट लोगे। आंसर में ऑलरेडी मालूम है, आंसर क्या है हमारा, आंसर RHS है। व्हाट इज योर RHS? RHS इज x माइनस आइटा y इंटू, सॉरी, a माइनस आइटा b इंटू c माइनस आइटा d। ये चाहिए हमें, LHS से स्टार्ट करके RHS में ये चाहिए। RHS को सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, सिर्फ LHS को ही करना है सॉल्व। हम्म, अब इसको वापस ओपन करो, आंसर मैंने लिख दिया, वो चाहिए तुम्हें। a माइनस, इसको रीअरेंज करके कॉमन लेने की कोशिश करो विदाउट सिंप्लीफाइंग RHS। LHS से ही RHS आना मांगता है।
होल कॉन्जुगेट, पहले मल्टीप्लाई कर लो, ए सी प्लस बी डी, आइडा कॉमन, बी सी माइनस ए डी, होल कॉन्जुगेट, पहले मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसका कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट कैसे लोगे? आइडा को माइनस आइडा से रिप्लेस करो। ये आ गया, बट हमें चाहिए ये हमारा आंसर है। हो गया। आरएचएस आ गया एलएचएस से। हम्म हम्म अरे अच्छा, मैंने गलती कर दी। प्लस होगा ना ये आइडा माइनस होगा। तो अब हम्म 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 राइट। वही बेसिकली इसमें की है, ए सी माइनस बी डी माइनस आइटा बी सी माइनस आइटा ए डी। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर तुम इसमें से ए कॉमन ले लोगे तो सी माइनस आइटा डी चाहिए, वो हमारे पास ऑलरेडी है। सो आई टेक ए कॉमन, सी माइनस आइटा डी, सी माइनस आइटा डी आई वांट, बट द प्रॉब्लम इज विद माइनस बी डी। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे आइटा नहीं है हमारे पास, सिर्फ एक ही आइटा है ना, जबकि हमें आइटा कॉमन चाहिए। तुम क्या करेंगे, वी नो दैट आइटा स्क्वायर माइनस वन होता है, तो इस माइनस बी डी को लिखो आइटा स्क्वायर बी डी, और फिर कॉमन ले लो। नाउ वी टेक माइनस आइटा बी कॉमन, तो सी माइनस आइटा डी बचेगा। सो यू गेट द आरएचएस ए माइनस आइटा बी, सी माइनस आइटा डी। तो ये कॉन्जुगेट का रिजल्ट है, दैट Z1, और इसको तुम दो की जगह तीन के लिए भी कर सकते हो, Z1 Z2 Z3 होल कॉन्जुगेट वुड बी Z1 conjugate, Z2 conjugate, Z3 conjugate. And you can generalize this for n number of complex numbers also. Z1 conjugate, Z2 conjugate, till Zn conjugate. जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाइड है, सबका कॉन्जुगेट हो जाएगा। स्कूल एग्जाम में तो डेराइव भी हो सकता है, प्रूविंग के लिए भी आ सकती हैं। एंट्रेंस हम डायरेक्ट यूज करेंगे इन सबको। Similarly, this mod of Z1 by Z2 equal to, sorry, conjugate of Z1 by Z2 is conjugate of Z1 by conjugate of Z2.
ये भी कर लो। कॉन्जुगेट ऑफ Z1 by Z2 इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ Z1 by कॉन्जुगेट ऑफ Z2। मेरे को एक मिनट क्या हो? थर्ड लास्ट स्टेप से फिर से बता दो। यहाँ पे आयोटा नहीं था तो इस -1 को मैंने आयोटा स्क्वायर लिख दिया, -BD को मैंने लिख दिया आयोटा स्क्वायर BD। ठीक है। यस। इस -1 को लिख दिया, माइनस आयोटा स्क्वायर BD कर दिया, फिर आयोटा माइनस आयोटा B कॉमन ले लिया, बिकॉज दोनों टर्म में आयोटा होना चाहिए था ना कॉमन लेने के लिए। तो आयोटा था नहीं हमारे पास, उसको मैंने लिखा -1 की जगह आयोटा स्क्वायर। सेकंड पार्ट प्रूव करो इसका, ये वाला। Z1 by Z2 होल कॉन्जुगेट इज Z1 conjugate by Z2 conjugate। और इसमें भी ट्राई करना कि सिर्फ LHS से ही RHS आ जाए। RHS है हमारा Z1 conjugate by Z2 conjugate, मतलब A माइनस आइडा B डिवाइड बाय C माइनस आइडा D हमारा आंसर है। हो गया। हाँ तो पहले तो उसको तुम अलग अलग करो ना, ऊपर ऊपर तो मल्टीप्लाई करो। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें इस पहले इस स्टेप के बाद इनको अलग अलग करना था ना, रियल पार्ट अलग इमेजिनरी अलग, फिर कॉन्जुगेट लेना था। अच्छा ठीक है, ठीक है, हाँ तो ठीक है, अब तो सही है। इसको वापस लिख दो ना, C² + D² को, C माइनस आइडा D C प्लस आइडा D। C² + D² इज C माइनस आइडा D इंटू C प्लस आइडा D। वो कट जाएगा, आ जाएगा आंसर। हो गया सभी का?
बोर्ड पे करो तुम ये। हम्म। पहले उसको स्टैंडर्ड कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करो। हाँ ठीक है, सही है। बाय रैशनलाइजिंग इट, ताकि रियल पार्ट अलग कर देंगे, इमेजिनरी अलग करेंगे। नीचे तुम डायरेक्ट ही लिख सकती हो, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर, अभी जो रिजल्ट तुमने किया है ना, जेड टू जेड बार इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सी प्लस आइटा डी इंटू सी माइनस आइटा डी स्ट्रेट अवे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। हाँ डायरेक्ट लिख दो। हम्म। हम्म। ऊपर बार लगाओ, पहले वाले में। हाँ। डिवाइड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, अलग अलग। अलग अलग डिवाइड कर देते ना, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर से अलग अलग डिवाइड करो, ताकि, हाँ, ताकि रियल पार्ट इज सेपरेट, इमेजिनरी सेपरेट। नाउ सिंस ये कॉम्प्लेक्स नंबर इज इन कार्टेशियन फॉर्म, स्टैंडर्ड कार्टेशियन फॉर्म, अब इसका कॉन्जुगेट ले लो। तो प्लस आइटा की जगह माइनस आइटा हो जाएगा अब। तो वंस द कार्टेशियन फॉर्म इज देयर, नाउ यू अप्लाई। हाँ, अब कॉन्जुगेट कर दो इसको, तो आइटा की जगह माइनस आइटा डाल दो। आइटा की जगह माइनस आइटा डाल दिया। इस साइड में कर दो, इसको हटा दो। हाँ, हाथ से कर दो। And in the denominator, you can write c plus iota d, c minus iota d also if you want. Because c square plus d square is c minus iota d into c plus iota d.
Z1 bar by Z2 bar. So that's conjugate. ठीक है. तो ये सेकंड लास्ट स्टेप में नहीं, सेकंड स्टेप में ऊपर से जब ये वाला. कॉमन, नेक्स्ट स्टेप में इसके बाद जब कॉमन लिया है हाँ, आयोटा इसमें कुछ गड़बड़ हुई है. AC प्लस BD माइनस आइटा BC. आइटा BC है. आइटा BC है, ये है ना. ये आइटा D है. हाँ. इन दोनों में से एक कॉमन लिया इसमें से. प्लस BD को वही कहानी. ठीक है, क्या किया इसने. BD को लिखा माइनस आइटा स्क्वायर BD. दिस वाज द पॉइंट. BD को माइनस आइटा स्क्वायर BD लिखा, तब आइटा कॉमन आएगा. So now you know mostly all the results, complex modulus के and conjugate के also. एक और चीज है. Can you verify this? Z1 plus Z2 whole bar is Z1 bar plus Z2 bar. You can take Z1 as A plus iota B and Z2 as C plus iota D. इसको verify करना जरा. Z1 minus Z2 whole bar is Z1 bar minus Z2 bar. ये भी वेरीफाई कर लूँ. तो इसमें अक्सर ये पता है क्या गलती होती है कि यहाँ प्लस है तो उसको माइनस कर देता है. ऐसा नहीं होगा. यहाँ माइनस उसको प्लस कर दिया, ये बीच का साइन वही रहता है. हम्म. तो Z1 प्लस Z2 होल बार अगर करेंगे तो बार जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. बीच का प्लस साइन प्लस रहेगा और बीच वाला नेगेटिव साइन नेगेटिव ही रहेगा. सर इसमें कॉन्जुगेट हम कैसे हम्म. करेंगे? अगर दो इमेजिनरी नंबर है तो उन दोनों के हम साइन बदलेंगे फिर? तुम आवाज साफ नहीं आ रही, बोलो, चिल्ला के बोलो. मैं बोल रही हूँ जो दो इमेजिनरी नंबर हो जाएंगे तो फिर उन दोनों की साइन बदलेंगे ना? हाँ, मतलब इसके अंदर का साइन बदलेगा ना. जैसे LHS से तुमने शुरू किया, LHS क्या हुआ. पहले ऐड कर लिया Z1 Z2 को. A प्लस आइटा B C प्लस आइटा D, ये तो हुआ होल कॉन्जुगेट. फिर रियल पार्ट अलग लिख लिया, इमेजिनरी अलग कर दिया, होल कॉन्जुगेट. अब कॉन्जुगेट ले लो, आइटा को माइनस आइटा लिख दो बस.
तो जाएगा ए प्लस सी माइनस आयटा बी माइनस आयटा डी। तो ये ए माइनस आयटा बी हो गया प्लस सी माइनस आयटा डी हो गया। दिस इज Z1 बार, दिस इज Z2 बार। कहने का मतलब ये जो पॉजिटिव साइन है वो चेंज नहीं हुआ, वो वही रहेगा। सिमिलरली नेगेटिव में भी वही रहेगा, Z1 माइनस Z2 होल बार में भी वही होगा। अगर मान लो हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट उस कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर ही आ जाए, ऐसा हो सकता है? इज इट पॉसिबल कि हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालें तो सेम ही आए? नहीं सर, आई डोंट थिंक सो। यस पॉसिबल है। अगर मान लो z है x प्लस आइटा y, तो z बार क्या होगा? x माइनस आइटा y। दैट मीन्स इसका इमेजिनरी पार्ट कितना होगा? 0। दैट इज अगर कोई नंबर प्योरली रियल है तो अगर ये होता है इसका मतलब z इज प्योरली रियल। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट उसके इक्वल आएगा, दैट वुड मीन दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल। तो मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको हमने किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, k इंटू जेड कर दिया, और हम k इंटू जेड का कॉन्जुगेट निकाल रहे हैं। तो कॉन्जुगेट तो डिस्ट्रीब्यूट होता है, k कॉन्जुगेट इंटू जेड कॉन्जुगेट, लेकिन k तो रियल नंबर है, k इज ए रियल नंबर। तो क्या बन जाएगा? तो k जेड बार हो जाएगा। सो इफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय a real number, then its conjugate would be simply the same real number into z bar. या सर एक बार वापस बता सकते हो? थोड़ा समझ नहीं आया। देखो, अगर सपोज तुम्हारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 5 इंटू जेड, इसका मुझे कॉन्जुगेट निकालना है, तो क्या हो जाएगा? वो 5 का कॉन्जुगेट इंटू जेड का कॉन्जुगेट, 5 का कॉन्जुगेट तो 5 ही रहेगा। तो कहने का मतलब रियल नंबर अगर है तो उसका कॉन्जुगेट सेम नंबर हो जाता है। अच्छा, ओके। Now, is it possible that z bar equals to minus z? अगर मान लो z है x प्लस आइटा y, तो z बार क्या होगा? x माइनस आइटा y। x माइनस आइटा y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस आइटा y, ये कट जाएगा, मतलब x इक्वल टू 0। तो अगर ये होगा, इट वुड इम्प्लाई दैट z इज प्योरली इमेजिनरी। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी होगा तो उसका कॉन्जुगेट उस कॉम्प्लेक्स के नेगेटिव के बराबर हो जाएगा। जैसे 2 आयोटा है, z अगर 2 आयोटा है तो z बार क्या हो जाएगा? माइनस 2 आयोटा। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है, से 3 आयोटा, तो z बार क्या हो गया? माइनस 3 आयोटा। तो z बार हो जाएगा माइनस z। तो नेक्स्ट क्लास में मोर ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, एंडिंग द क्लास। थैंक यू सर। बाय। Thank you.